Hello, this is the second part of the video of quadratic equation chapter. In this we will study about quadratic formula and use of quadratic formula and nature of the roots of the quadratic formula. Okay, what is the quadratic equation? Ax square plus bx plus c equals to 0. This is the quadratic equation where a is not equal to 0. By derivation, the solution of this quadratic equation will be x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This formula comes from derivation. Okay, so this is called quadratic formula. Quadratic formula. With the help of quadratic formula, we will solve this given question. Question is 3x square minus 5x plus 2. So solution will be in subjective way here. A equals to 3, b equals to minus 5, c equals to 2. When we will compare this quadratic equation with a standard equation of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then a will be 3, b will be minus 5 and c will be plus 2. Okay, as we know that x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. This is our quadratic formula. Okay, now we will put the values of a, b and c in this. Then minus, value of minus will be minus 5 plus minus square root of minus 5 whole square minus 4 3 into minus 4 into 3 into 2 upon 2 into 3. So this will be plus 5 plus minus square root of 25 minus 24, 4 into 3 12, 12 into 2 24 upon 6. Further, this will be 5 plus minus square root of 1 upon 6. So this will be 5 plus 1 plus minus 1 upon 6. So value of x will be 5 plus 1 upon 6 and 5 minus 1 upon 6. We will solve this further. 6 upon 6 and 4 upon 6. So this will be 1 times and this will be 2 and 3. So value of x will be value of x will be 1 and 2 upon 3, and this is the final solution or roots of the given quadratic equation. Okay, now come to the second question. Find the roots of the following equation. Following quadratic equation, this will be also solved by use of quadratic formula. Okay, so we will try to solve this. The process will be, first we will write here a equals to 2, b equals to 1 and c equals to minus 4 after comparing with a standard equation. Okay, and as we know that x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Now we will put the values of a, b and c. Value of b will be 1, then it will be minus 1 plus minus square root of
whole square of 1 minus 4 into 2 into minus 4 upon 2 into 2. So further this will be minus 1 plus minus square root of 1 minus into minus plus 32 upon 4. So it will be minus 1 plus minus square root of 33 upon 4. And 33 is not the complete square root. So value of x will be minus 1. एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, minus 1 plus 33 upon 4 and minus 1 minus square root of 33 upon 4. This is the solution of given quadratic equation. Now we will solve the second question. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है x एंड x माइनस 2, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे. देन दिस विल बी x इंटू x माइनस 2, here x minus 2 minus x equals to 3. Then my x into x minus 2, ये x से x cancel out, x minus x 0, then minus 2 equals to 3. We will do cross multiplication, then 3x into x minus 2 equals to minus 2. 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इधर से माइनस 2 आके इधर प्लस 2 हो गया. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. x इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ माइनस 6 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 upon 2 into 3. So we will solve this. 6 plus minus square root of 36 minus 24 upon 6. We will solve further this question here. Okay, and this is 6 plus minus square root of 12 upon 6. 6 plus minus square root of 14 will be 2 root 3 upon 6. 2 कॉमन है ऊपर से, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 6. ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू ऑफ x will be 3 plus root 3 by 3, and second value will be 3 minus root 3 upon 3. x का ये दोनों वैल्यू हुआ, क्या हुआ, x plus 3 root 3 upon 3, and second value will be 3 minus root 3 upon 3. This will be final answer of this question. Now we will look, 1 minute. Now we will study about discriminant and nature of roots, and this will be studied under quadratic equation chapter. So our standard quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. And solution of this will be x equals to minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a. एंड ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT. Okay, and discriminant is denoted by capital D, and value of discriminant will be b square minus 4ac upon
सॉरी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ये? अगर हम चाहें इस फॉर्मूले को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में लिखना सिंबल में, तो हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी का वैल्यू क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेंट जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, ये इस पूरे x का वैल्यू इसी पे डिपेंड करता है। अगर रूट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसका वैल्यू कभी भी रियल नहीं होगा। ठीक है, कोई रियल नंबर नहीं हो सकता है। उसके बाद दो कंडीशन है, अगर स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? रूट्स तो रियल होगा लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों x का वैल्यू क्या हो जाएगा? इफ़ d इक्वल्स टू 0, अगर d 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। देन x का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a प्लस 0 एंड माइनस 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 हो गया तो उस केस में x का दो वैल्यू आएगा, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या बनता है? जो स्क्वायर रूट है मेरा, स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा, कुछ भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, अपॉन 2a एंड सेकेंड वैल्यू विल बी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब क्या है? दोनों रूट डिफरेंट है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और दोनों क्या है? रियल है। ठीक है, तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आएगा। रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल, और रियल सॉल्यूशन है ये। और यहाँ क्या है? ये रियल सॉल्यूशन है एंड रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, ये है। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस हो जाए, एक कंडीशन हो क्या? उसमें क्या हो जाए? मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस हो जाए, देन रूट्स विल नॉट बी रियल। ठीक है, बस यही 3-4 कंडीशन है। चलिए, समझ में आ गया है। अब आगे पेज पे थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। क्या था? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो मेरा है, यही था मेरा x का वैल्यू, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है। चलिए, क्या है? ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो देन क्या होगा? मेरा 2 डिफरेंट रूट्स फाइंड आउट होगा। टू डिफरेंट रूट फाइंड आउट होगा। कौन कौन सा? एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में होगा, और डिफरेंट रूट होगा, इट मीन्स ये क्या होगा? रियल रूट्स होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तब क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और वो रियल होगा। देन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन 2 इक्वल रूट्स। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट के अंदर का वैल्यू ये जो है ये क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, देन नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर कंडीशन में दे रखा हो 2 रियल रूट्स, तो रियल रूट्स मीन्स इट कैन बी इक्वल और इट कैन बी इक्वल रियल रूट्स और इट कैन बी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे
अगर हमारा कहीं भी पूछ दे, क्या पूछ दे, 2 रियल रूट्स, ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यही मेरा 4 कंडीशन है, 3 मेजर है, और ये फोर्स जो है फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। इसी में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल, इफ रूट्स आर रियल देन ऑल्सो फाइंड देम। तो फर्स्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मेरा क्या है, सॉल्यूशन है, देखते हैं इक्वेशन क्या गिवन है। गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। यही मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स d, बट उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। हियर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। चलिए अब डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये -4 कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 आ गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना हो गया, d इक्वल्स टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। चलिए एक पार्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वो क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन देखेंगे, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अब कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इसके रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स का जो नेचर है वो किस टाइप का है। तो अभी हम पढ़े हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, उस केस में क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, इक्वल रूट्स फाइंड आउट होता है। सिंस, तो देन फर्दर लिखेंगे हम, सिंस d इक्वल्स टू 0 हेंस रूट्स विल बी इक्वल। यही है, चलिए हो गया, ये था। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड देम इफ दे आर रियल, ठीक है, रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल कर दीजिए इसको, इक्वल एंड रियल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड देम इफ दे आर रियल, कह रहा है अगर रूट्स इसके रियल हैं तो उसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन वैल्यू ऑफ b विल बी माइनस ऑफ -2, और ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम क्या देखें, अभी हमारा 0 आया हुआ है, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0 उसको कैंसिल आउट कर हटा दीजिए, या फिर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0 अपॉन 6, 2 रियल रूट्स होगा, क्या होगा 2/6 एंड ऑल्सो 2/6, 3 टाइम्स एंड हियर ऑल्सो 3 टाइम्स। देन वैल्यू ऑफ x विल बी 1/3 एंड 1/3, 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन 3 पार्ट में था और तीनों पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, और ये आपका फर्दर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कौन से कंडीशन पे, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एज वी नो दैट कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है,
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आना चाहिए जो कंडीशन पूछ रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। आफ्टर कंपेयरिंग हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3, ठीक है। एंड कंडीशन फॉर, क्या कह रहा है, k का वैल्यू कब फाइंड आउट करना है, व्हेन दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स, क्या है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू पुट कीजिए, k है तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। देन क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इक्वल्स टू, ये गया उधर 24 हो गया। चलिए उसे देखते हैं। तो k इक्वल्स टू स्क्वायर जो है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, और 24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 4 इंटू 6 इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 3 हो गया। तो वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस 2 रूट 3, यही मेरा k का जो वैल्यू होगा जिसपे रूट्स ऑफ ये दोनों रूट होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेरा यही पूछ रहा था, k का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। चलिए अब आपका सारा का सारा दोनों पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। फर्दर आप इसको सॉल्व कीजिए और इस चैनल को, ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत जल्द, ठीक है। तब तक हंसते रहिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।